હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 10 ની તૈયારીમાં તમારા સંસ્કૃતના વિકલ્પોમાં તમે હિન્દી વિષય રાખેલો છે. હિન્દી વિષયની અંદર કેવું પેપર આવવાનું છે, હિન્દી વિષયમાં કઈ પ્રકારના પ્રશ્નો હશે, આ બધું જ તમારે જાણવું છે. તો વિડીયોને છેલ્લે સુધી જોવાનો છે અને હિન્દીમાં પણ તમારે પૂરા માર્ક મેળવી શકો એવી શક્યતા રહેલી છે. તો હિન્દી માટે કેવું કેવું હશે જરા જોઈએ, સમજીએ અને તમારા તૈયારીમાં થોડુંક કંઈક સહેલું થાય એવો પ્રયત્ન કરીએ. તો ચલો મિત્રો, તમારા ગુજરાતના આપણા માધ્યમિક ઉચ્ચતર માધ્યમિક બોર્ડ દ્વારા જ તે એક સરસ મજાની બ્લુપ્રિન્ટ અને પ્રશ્નપત્રનું પ્રારૂપ કેવું હોય એ વિશેનો એક આખો સરસ મજાનો અહીંયા હું વિડીયો બનાવવા જઈ રહ્યો છું. એમાં ખાસ ધ્યાન રાખજો કે ભાઈ ક્યાંક પ્રશ્નપત્રની સંરચનામાં ફેરફાર કરવાની છૂટ હોય છે. આ ગુણ, જ્ઞાન, સમજ, ઉપયોજન આ બધું એમના માટે છે જેને પેપર કાઢવું છે. એટલે એની ઉપર બહુ ધ્યાન નહીં આપીએ, આપણે જઈએ સીધા પ્રશ્નોના પ્રકારો તરફ. કે તમને હેતુલક્ષી 1 માર્કના 16 પ્રશ્ન હશે જેના 16 ગુણ છે, પછી 22 પ્રશ્ન હશે જેના 22 ગુણ છે. મતલબ કે આ બધા કેવા છે મિત્રો, એક માર્કના સિંગલ. ત્યારબાદ ટૂંક જવાબી તમને 5 પ્રશ્ન હશે અને એક પ્રશ્નના 2 માર્ક, મતલબ કે 10. તમને બીજા ટૂંક જવાબી પ્રશ્નો હશે એસે 2 ટાઈપના અને એ 3 માર્કના છે જેના તમને 15 મળશે. 5 પ્રશ્નો, એક પ્રશ્નનો 3 માર્ક. ત્યારબાદ લાંબા પ્રશ્ન 2 છે અને એક પ્રશ્નનો 5, મતલબ કે ટોટલ 10 માર્ક છે. બરાબર છે. અને નિબંધ જે મોસ્ટ તમે લખવાના છો, જે 7 માર્ક તમને 7 માંથી 6, 6.5 સુધી મળી જ શકે છે. તો આ પ્રમાણે તમારે 51 બોલમાં 80 રન કરવાના છે. કેટલા છે? 51 બોલમાં 80 રન કરવાના હોય ત્યારે મસ્ત રીતે એવી સરસ મજાની તૈયારી કરવાની કે પછી એમ ન થઈ જાય અંતમાં કે કંઈક આટલું કરી લીધું હોત તો સારું હતું. એના કરતાં સરસ રીતે ડિફેન્સ કરતા જઈએ અને જ્યાં જરૂર પડે ત્યાં ચોગા છગ્ગા મારતા જઈએ. ચલો સમજીએ કઈ રીતનું પેપર હશે. સૌથી પહેલો વિભાગ હશે એ વિભાગ, ગદ્ય વિભાગ, જેમાં તમારે ખાસ પાઠ્ય ક્રમાંક, સંપૂર્ણ પાઠ્યપુસ્તક તૈયાર કરવાનું છે. પછી કાવ્ય ક્રમાંક વિભાગ બી ની અંદર સમગ્ર સંપૂર્ણ પાઠ્યપુસ્તક તમારે તૈયાર કરવાનું છે. 19 માર્ક વિભાગ એ, 19 માર્ક વિભાગ બી, 18 માર્ક વિભાગ સી, જેમાં છે આખો વ્યાકરણ વિભાગ. આની અંદર મિત્રો તમારી પ્રાથમિક તૈયારીમાં હું તમને જણાવું તો સ્વાધ્યાયના પ્રશ્ન જવાબોને ખાસ તમે તૈયાર કરજો. એને તૈયાર કરશો તો ઓલમોસ્ટ તમને 50-60 પ્લસ માર્ક આવવાની શક્યતા છે જ. વ્યાકરણ વિભાગની અંદર મહાવરા, કહાવતે, વિરોધી શબ્દ, સમાનાર્થી શબ્દ, શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ, આ બધા આટલું તો તમારે, જે તમારો પાઠ જેવો પૂરો થાય ને પછી બધામાં વ્યાકરણ લખેલું હોય છે દોસ્તો. આ વ્યાકરણ તમે તૈયાર કરજો, તમારું આટલું કામ ત્યાંથી થઈ જશે. સંધિ બહુ સરસ મજાની સહેલી ટ્રીક છે. સ્વર સંધિને ખાસ તૈયાર કરજો, એમાંથી જ મોસ્ટ ઓફ આવી શકે છે. ભાવવાચક સંજ્ઞા બનાવવાની હોય છે અને કર્તૃવાચક સંજ્ઞા બનાવવાની હોય છે. આ બે થોડી બુદ્ધિ વાપરશો ને તો સાવ સહેલું છે. થોડી કોમન સેન્સનો ઉપયોગ કરજો દોસ્તો. સંજ્ઞા બનાવવાની હોય, કર્તૃવાચક, ભાવવાચક સંજ્ઞા, વિશેષણ અને સમાસ. સંજ્ઞા, વિશેષણ, સમાસ, ભાવવાચક, વ્યક્તિવાચક, જાતિવાચક, કઈ સંજ્ઞા હોય છે એ, અને વિશેષણ તમારે બનાવવાનું, જોવાનું છે, અને સમાસ જોવાનો છે. તો સમાસની અંદર મોસ્ટ ઓફ તત્પુરુષ સમાસવાળા ઉદાહરણો વધારે મૂકતા હોય છે. ત્યારે તત્પુરુષ સમાસ, બે શબ્દો વચ્ચે વિભક્તિનો સંબંધ હોય તો તત્પુરુષ સમાસ થાય છે. અને વિશેષણ, તો વિશેષણની અંદર તમારે શોધવાનું કે ભાઈ કયું વિશેષણ છે અને કેવી રીતે એનો પ્રયોગ કરવાનો, આપણે હમણાં જોઈએ આગળ. વિભાગ ડી લેખન વિભાગ છે. તો લેખનની અંદર ગદ્ય સમીક્ષા, કહાની લેખન, ટિપ્પણી અથવા પત્ર લેખન, બેમાંથી એક હશે અને નિબંધ લેખન હશે. અને એના તમને 24 માર્ક છે. મતલબ કે આ 24માંથી તમે 20 પ્લસ લઈ શકો. જો તમે ધારો તો આરામથી 20 પ્લસ લઈ શકો અને તમે તમારા પરિણામમાં ક્યાંક જે ખાડો ઉપરના હોય ને એબીસીમાં, ડીથી તમે પૂરી શકો છો. તો આ રીતે તમારે તૈયાર કરવાનો છે. કેવું છે પ્રારૂપ, કઈ રીતના હશે પ્રશ્નો, જો સમજીએ. ગદ્ય વિભાગમાં વિકલ્પો છે, એટલે વિકલ્પો આપેલા હોય ત્યારે ખાસ ખાલી તો રાખવાનું જ નથી દોસ્તો. કંઈ ખબર ન હોય તો માત્ર એટલી ખબર પડે કે આ પાઠનું છે. કંઈક નજીકનો લાગતો, થોડોક અભ્યાસ કરેલો એવો જવાબ લખી દેજો. 2 હશે એના 2 માર્ક મળશે. વિકલ્પ પસંદ કરી અને ખાલી જગ્યાની પૂર્તિ કરો, એના પણ 2 પ્રશ્ન હશે. યાદ રાખો, વિકલ્પ હોય ત્યારે બહુ ચિંતા નહીં કરવાની. વાક્યો મેં સે સહી વાક્યાંશ પસંદ કરવાનો અને આખું વાક્ય લખવાનું, એના પણ 2 પ્રશ્ન. મતલબ કે આમાં પણ વિકલ્પ છે. પ્રશ્નો કે उत्तर एक वाक्य में हो, ऐसे 3 प्रश्न पूछिए. 3 प्रश्न पूछશે, एक वाक्य वाला 3 જવાબો તમારે લખવાના છે. પ્રશ્નો કે उत्तर 2-3 वाक्यों में हो, ऐसे 2 प्रश्न, એના 2 પ્રશ્ન હશે.
અને એના તમને એક પ્રશ્નના 2 માર્ક એટલે કે 4 માર્ક મળશે. ત્યારબાદ 4-5 વાક્યમાં જવાબ, એમાં એક જ પ્રશ્ન હશે અને એક અથવામાં હશે અને 3 માર્કમાં, મતલબ કે વિકલ્પ આપ્યા છે. બહુ સરસ. कथनों आशय स्पष्ट हो ऐसा एक प्रश्न पूछिए और उसके अथवा में एक प्रश्न दीजिए. कथनનો आशय स्पष्ट થાય એવો કંઈક પ્રશ્ન પૂછશે એની અંદર. વિભાગ બી મિત્રો, પદ્ય વિભાગ જે કવિતા હોય એ પદ્ય વિભાગ સેમ પેટર્નથી જ જવાનું છે. પહેલામાં વિકલ્પ, બીજામાં વિકલ્પ, ત્રીજામાં વાક્યાંશ, ચોથામાં એક એક વાક્ય, 2-3 વાક્ય અને 4-5 વાક્ય અને આશય સ્પષ્ટ થાય એવો પ્રશ્ન. તો આ રીતે આની અંદર તો શું હોય, પંક્તિઓ આપેલી હશે. આમાં કથનનો આશય સ્પષ્ટ કરે, અહીંયા પંક્તિનો આશય સ્પષ્ટ કરે છે. તો આ પ્રમાણે તમારું પેપર રહેશે, જેમાં વિભાગ એ અને બી હોવાના છે. બરાબર. આની અંદર કોઈ ડાઉટ હોય તો જરૂર કોમેન્ટ કરજો. વિભાગ સી છે વ્યાકરણ વિભાગ, એની અંદર કહાવતનો અર્થ સ્પષ્ટ કરવાનો એક પ્રશ્ન, શબ્દ સમૂહનો એક પ્રશ્ન, સંધિ છોડવાનો, સંધિ જોડવાનો, મુહાવરાનો અર્થ કરી અને વાક્ય પ્રયોગ કરવાનો. બહુ જ સહેલી રીત છે છોકરાઓ, વાક્ય પ્રયોગ કરવામાં જરાય કન્ફ્યુઝ નહીં થવાનું, ચિંતા નહીં કરવાની. થોડું ઘણું વાંચેલું, સાંભળેલું, જોયેલું, ક્યાંકથી ને ક્યાંકથી તમે વાક્ય બનાવી શકો છો તમારી જાતે, મૌલિકતાથી. શબ્દોનો વિરોધી સહેલો રહેશે, પર્યાયવાચી થોડુંક અઘરું પડે પણ વાંચન હશે તો નહીં વાંધો આવે. અને એના 2 પ્રશ્ન છે દોસ્તો. શબ્દની ભાવવાચક સંજ્ઞા 2 પ્રશ્ન પૂછો, બે બધાના માર્ક છે. ભાવવાચક સંજ્ઞા બનાવવાની, કર્તૃવાચક સંજ્ઞા બનાવો, એના 2 પ્રશ્ન છે. માટે આ રોકડા માર્ગ છે. વ્યાકરણ વિભાગ બહુ જ સહેલો છે હિન્દીનો, એના તો પૂરેપૂરા 18 ખેંચી જ લેજો. એના માટે મેં થોડા ડેમોના વિડીયો પણ બનાવ્યા છે, તમે એને જરા જુઓ અને હિન્દીને બરાબર રીતે તૈયાર કરો. સાવ સહેલું છે, એને જવા ન દો દોસ્તો. વિશેષણ સંજ્ઞા બનાવવાની અને એના 2 પ્રશ્ન પૂછ્યા. સમાસ ઓળખવાના, એના 2 પ્રશ્નો. બહુ મજા આવે એવું છે, બહુ મજા આવે એવો વ્યાકરણ વિભાગ છે, સાવ સહેલો છે. આ તમે તૈયાર કરો. બીજું વિભાગ ડી ની અંદર છે સૌથી છેલ્લે લેખન વિભાગ. प्रयोजन मूलक में से संक्षिप्त टिप्पणी पूछिए और उसके अथवा में एक टिप्पणी पूछसे जेने तमारे लखवानी. टूंक नोंध लाइक अपठित परिच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखे, ऐसे 4 प्रश्न पूछिए. मतलब फकरामांथी प्रश्न जवाब જોઈ જોઈને જવાબ લખવાના, 4 માર્ક મેળવવાના, જવા જ નહીં દેવાનું. પત્રલેખનની પદ્ધતિને સમજી લેજો દોસ્તો. પત્રલેખનની પદ્ધતિ કઈ રીતે હોય છે, કઈ બાજુ સરનામું આવે છે, પોતાનું નામ, સરનામું, તારીખ, પછી અહીંયા પ્રિય સ્વજન જેને લખતા હોય એને સંબોધન કરવાનું, વિષય લખવાનો. એ રીત લખશો ને તોય તમને એમાં 2 માર્ક તો મળશે જ. અને સૌથી છેલ્લે વચ્ચે 2 પેરેગ્રાફમાં એ પત્ર લખો ને, સૌથી છેલ્લે આપકા સ્નેહી, આપકા પ્રિયજન, આપકા વિશ્વાસુ, જે પણ તમારું આવતું હોય, તમારે જેના વિષય પર લખવાનો છે. વડીલ હોય તો એ પ્રમાણે અને નાના હોય તો એ પ્રમાણે, મોટા હોય તો પ્રણામ કરીને શરૂઆત કરવાની, નાના હોય તો મારા તમને વહાલ એમ કરીને શરૂઆત કરવાની. તો એ બધા નમૂના આપેલા છે તમારા બુકમાં, પાછળ નજર કરો યાર. મુદ્દો કે આધાર પર એક કહાની પૂછીએ, એક કહાની હશે અને એ પ્રમાણે તમારે એને વિસ્તારપૂર્વક લખવાની, કંઈ મોટી વાત નથી. અને 150 શબ્દોમાં નિબંધ છે. 150 તો ઠીક છે, પણ તમારે સારી રીતે તમે લખો. 2-4 પેરેગ્રાફ, 5 પેરેગ્રાફમાં પેટર્નપૂર્વક લખશો તો નિબંધના પણ પૂરા માર્ક છે. મતલબ કે આ તો બોનસ વિભાગ કહેવાય. આ બોનસ વિભાગને તો લૂંટી જ લેવાનો છે બરાબર. એ બીમાં બુક તૈયાર કરવાની, સી અને ડીમાં બુક કરતાં પણ વધારે, ચોપડી કરતાં ખોપડીનું કામ જાજુ છે. તો કામ લેવાનું એની પાસેથી અને મસ્ત રીતે તૈયાર કરવાનું. તો મિત્રો આ રીતે તમારું હિન્દીનું પેપર છે. અને હિન્દીની અંદર હજી ડાઉટ હોય તો ચોક્કસ પહેલા વિડીયો મેં બનાવ્યા છે, એને જોજો હિન્દીના વ્યાકરણ ઉપર. હેલો દોસ્તો, તમારા ધોરણ 10 ની તૈયારીની અંદર બધા વિદ્યાર્થીઓની ડિમાન્ડને ધ્યાનમાં રાખીને ખાસ હિન્દી વિષય માટે થઈ અને જે ધોરણ 10 ની અંદર સંસ્કૃતના વિકલ્પમાં હિન્દી રાખેલું છે એવા મિત્રો માટે હિન્દીમાં વ્યાકરણ વિભાગની મદદ કરવા માટે થઈ અને તમારી સાથે હું આ પેપર લઈને આવ્યો છું. તો આ વિડીયોને અંત સુધી જોવાનો છે અને તમારા દરેક હિન્દીના વ્યાકરણના પ્રશ્નોનું બહુ જ સારી રીતે સોલ્યુશન જે હું તમારી સાથે રજૂ કરીશ, શેર કરીશ, એને તમારે અભ્યાસ કરવાનો છે. અને આ જ રીતે હું પ્રયત્ન કરીશ કે તમને મેક્સિમમ પેપર તમારી સાથે શેર કરી શકું, જેથી કરીને હિન્દીવાળા મિત્રો કે એમને હિન્દીમાં પૂરેપૂરી મદદ મળી રહે. તો જો તમે આ ચેનલની અંદર પહેલી વખત જોડાયા છો, હિન્દીનો વિડીયો જુઓ છો, તો ખાસ આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો, લાઈક કરજો અને તમારા મિત્રો સુધી શેર કરો. જેને હિન્દી છે એમના માટે આ હું મદદ માટે આવ્યો છું. તો આપણે શરૂ કરીએ મિત્રો હિન્દીના પેપરની. તો હિન્દીના વ્યાકરણ વિભાગની અંદર આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે 17 માર્કનું આપણું હિન્દીનું વ્યાકરણમાં આવે છે. જે મહત્વનું છે એની જ વાત કરીશ તમારી સાથે. તો સૌથી પહેલા મિત્રો તમને પ્રશ્ન આવે છે કહાવત.
निम्नलिखित कहावत का अर्थ स्पष्ट कीजिए। તમે જોવા જાવ તો હિન્દી અને ગુજરાતીમાં થોડી ઘણી સામ્યતા છે। સંસ્કૃતનું તમને નહીં કહું કારણ કે તમે સંસ્કૃત એટલું ભણ્યા નથી, કારણ કે તમે આખું વર્ષ હિન્દી રાખ્યું છે, તો સામ્યતા ગુજરાતી સાથે થોડી ઘણી રહેશે, પણ છતાં પણ હિન્દી તો હિન્દી એટલા માટે જ અલગ ભાષા છે। તો દિન દુની રાત ચૌગની આ બે કહાવત છે। હવે એને આપણે ગુજરાતીની અંદર સમજવા જઈએ તો ભાઈ કે ભાઈ દિવસ છે એ બમણો છે તો રાત છે એ 4 ગણી છે, મતલબ કે એમની આવક બહુ સારી છે। અહીંયા જે વાત કરે છે એ આવક બહુ સારી હોય ત્યારે આપણે એની કહાવતના અર્થમાં એવું કહી શકીએ કે ભાઈ बहुत उन्नति, बहुत प्रगति करना, बहुत उन्नति करना, बहुत प्रगति करना, बहुत आगे बढ़ना। આ રીતે તમે આરામથી આનો કોઈ પણ અર્થ સ્પષ્ટ કરી શકો। યાદ રાખજો મિત્રો કે તમે જે અર્થ આપો છો એ અર્થમાં સમાનાર્થી શબ્દો સાથે તમે યોગ્ય રીતે અર્થ આપો તો પ્રગતિ કરો, ઉન્નતિ કરો કે सफलता प्राप्त करना, तेजी से દિવસે બમણું રાતે 4 ગણું, ઝડપથી, बहुत तेजी से प्रगति प्राप्त करना, बहुत तेजी से उन्नति प्राप्त करना, એવો તમે જવાબ આની અંદર લખી શકો છો। ત્યારબાદ મિત્રો શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ જહાં મનુષ્ય ન હો, બહુ જ સહેલો અને સરળ કે જ્યાં મનુષ્ય ન હોય એવી જગ્યા જેને આપણે કહીએ છીએ નિર્જન। ઘણીવાર તમે સાંભળ્યું હશે કે એક નિર્જન વન થા, જ્યાં કોઈ ન હોય એવા વનને નિર્જન વન, જ્યાં કોઈ જન નથી, બરાબર। તો શબ્દ સમૂહ માટે નિર્જન વન થશે। નિમ્નલિખિત સંધિ, સંધિ કો છોડીએ, ગુજરાતીની સંધિના જે નિયમો છે મિત્રો એ જ નિયમો સાથે તમારે હિન્દીના સંધિને પણ તૈયાર કરવાનું છે। તો જોઈએ આપણે કે અહીંયા પરમાનંદ, હિન્દી કે ગુજરાતી કે સંસ્કૃત કોઈને પણ તમે જ્યારે સંધિની અંદર છોડવાની વાત કરો છો તો છોડતા સમયે તમે જે એમાંથી શબ્દ મળે છે રોકડો, એ શબ્દ પહેલા અલગ કરી લો। તમારું વાંચન હશે તો તમને આરામથી ખબર પડી જશે કે પરમાનંદ શબ્દમાં આનંદ શબ્દ એક ફિક્સ છે, તો એનો મતલબ કે ત્યાં ક્યાંક સંધિ હોવી જોઈએ। તો એની આગળનો શબ્દ છે એમાં પણ એક નિયમ જે લાગુ પડે છે, જે અ પ્લસ આ બરાબર આ વાળો નિયમ આવતા તમારો જવાબ બનશે મિત્રો પરમ આનંદ અને પરમાનંદ। આ પ્રમાણે તમારો જવાબ આવે છે। ત્યારબાદ ફરીથી એ જ નિયમને કન્ટિન્યુ કરતા ફરી અહીંયા સહ વત્તા અનુભૂતિ આવો શબ્દ જ્યારે હોય તો સહ અને અનુભૂતિ હ ની અંદર શું છે અ છે વત્તા અનુભૂતિનો અ છે અને બંને મળીને શું બને છે આ અ પ્લસ અ સમાન સ્વર વાળી સંધિ છે મિત્રો, સવર્ણ સંધિ કહેવાય। તો અ વત્તા અ આ બનતા તમે જો કન્ડિશન સહ ની અંદરથી અ લઈ લીધો, અડધો કર્યો, અ અને અ બંને મળીને આ બનાવ્યું, તો હ નો અ અનુભૂતિનો અ, તો અહીંયા તમે લખ્યું શું હવે વધ્યું નું ભૂતિ, કારણ કે અ તો આની અંદર સમાઈ ગયો, હ અધૂરો છે। હવે હ જ્યારે વ્યંજન અધૂરો હોય અને પાછળ સ્વર આખો હોય તો એની અંદર ભળી જશે સહાનુભૂતિ। આ તમારો જવાબ બને છે। આ પ્રમાણે તમે સંધિને વ્યવસ્થિત રીતે કરશો તો ચોક્કસ તમે માર્કને મેળવી શકશો। ચલો આગળ જોઈએ છે હજી विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति, मतलब कि અહીંયા તમને જે આપેલો છે શબ્દ એનો તમારે અર્થ કરવાનો છે અને અર્થ કરીને તમારે એનો વાક્યમાં પ્રયોગ કરવાનો છે। અહીંયા શું કરવાનું છે? વાક્ય પ્રયોગ છે। તો વાક્ય પ્રયોગની અંદર સૌથી પહેલા જાણીએ શું કહે છે। નાક में दम करना, બહુ બધી જગ્યાએ આપણે સાંભળીએ છીએ, ચોર ने पुलिस के नाक में दम कर दिया, रात को सोते समय मच्छर ने मेरे नाक में दम कर दिया। આવા બધા શબ્દો અલગ અલગ છે, મતલબ કે પરેશાન કરના। સીધો સાદો અર્થ શું થશે દોસ્તો? પરેશાન કરના। તો પરેશાન કરના એવો અર્થ કરવા જાઓ ત્યારે હવે એનું વાક્ય બનાવો, તો વાક્ય તમારે આનું બનાવવાનું છે, મુહાવરો છે। આનું તમે વાક્ય બનાવો, नाक में दम करना, चोर ने पुलिस के नाक में दम कर दिया, रात को सोते समय मच्छर ने नाक में दम कर दिया, नाक में दम कर दिया એટલે परेशान कर दिया, हैरान कर दिया, આવું કંઈ પણ બની શકે છે। निम्नलिखित शब्दों का विरोधी शब्द लिखिए। विरोधी शब्द આપણે સૌ જાણીએ છીએ सौभाग्यमयम वसंतः, सौभाग्य और सौभाग्य का विरोधी शब्द होगा हमारा दुर्भाग्य, ये तो हम अच्छी तरह जानते हैं।
इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। सौभाग्य का विरुद्ध होगा दुर्भाग्य। और उसी तरह से आपको विरुद्धार्थी शब्द करने में बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। वो कैसे? क्योंकि सामान्य आगे अ लगा दीजिए और आपका हो जाएगा असामान्य। इस तरह से विरोधी शब्द जो आपको बहुत ही मदद करेंगे, ये एक एक मार्क के एक एक प्रश्न है, बहुत सरलता से आपको आ जाएंगे। पर्यायवाची शब्द उसमें थोड़ी दिक्कत रहेगी, लेकिन आप थोड़ा अपना पठन, अपना वांचन थोड़ा ज्यादा करेंगे तो आपको उसका भी समानार्थी पर्यायवाची शब्द सरलता से मिलेगा। कई बच्चे हमारे ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं कि पर्यायवाची का अर्थ क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, समानार्थी, जिसका अर्थ एक समान हो, ऐसे शब्द को पर्यायवाची भी कहा जाता है। समानार्थी का समानार्थी होगा पर्यायवाची, ठीक है। तो शुरुआत का समानार्थी हम कहेंगे प्रारंभ या फिर आरंभ। प्रारंभ है, प्रचंड है, आरंभ, प्रारंभ, शुरुआत। और जल्दी यानी कि जिसमें बहुत सारा जल समाया है उसको जल्दी कहेंगे, तो क्या होगा? वो हमारा समुद्र, समंदर में वो वाला समुद्र या सागर। समंदर भी लिख सकते हैं कहीं कहीं पे, यदि याद ना आए तो आप समुद्र जो का उसका अपभ्रंश ही है, समंदर बनेगा, ठीक है। तो सागर। और उसी तरह से भाववाचक संज्ञा बनानी है। भाववाचक संज्ञा का मतलब क्या होगा, ये आपको तो सबसे पहले जानना पड़ेगा कि भाव जो दिखता नहीं है, जो भाव है, तो भाव को यदि वाक्य में प्रयोग करेंगे तो शादी में फूफा जी के चेहरे पे प्रसन्नता दिख रही है, तो समझ रहे हो आप, भाव क्या है? प्रसन्नता। मैं बहुत प्रसन्न हूं, लेकिन आपके चेहरे पे प्रसन्नता दिख रही है, तो वो क्या हो गया? भाव हो गया। और उसी तरह से अपना, मुझे आपके घर में, यदि आप किसी अपने दोस्त के घर पे जाओगे तो आप क्या बोलोगे कि मुझे इस घर में भी अपनापन महसूस होता है। क्या होगा? अपनापन महसूस हो रहा है। तो वो अपनापन क्या है? वो भाव है, वो दिखता नहीं है, वो व्यवहार से आता है। और जो सामने ना हो, जो व्यवहार से, जिसको हम ना फील कर सके ना, फीलिंग्स है, तो जो फील कर सकेंगे उसे अपनापन ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया भाववाचक। आपको जो भी शब्द दिए होंगे दोस्तों, उसको आपको भाववाचक में इस तरह से परिवर्तित करना है। अब आगे देखते हैं कर्तृवाचक। कर्तृवाचक मतलब कि ये जो शब्द दिए होंगे, कर्तृ का अर्थ होगा दोस्तों कर्ता, मतलब यहाँ पे आपको कर्ता बनाना है कि विज्ञान, तो विज्ञान से जुड़े हुए जो लोग हैं, आप क्या कहेंगे उन सभी को? उनको आप कहेंगे दोस्तों वैज्ञानिक। क्या कहेंगे? विज्ञान को आपने क्या लगाया? आपने इक प्रत्यय लगाया, ठीक है। ये इक प्रत्यय लगाते ही विज्ञान का हो जाएगा वैज्ञानिक। उसी तरह से समाज का सामाजिक हुआ, विज्ञान का वैज्ञानिक हुआ। और उपदेश, अब उपदेश देने वाला कौन होगा? विज्ञान को पढ़ने वाला वैज्ञानिक कहलाएगा, उपदेश को पढ़ने वाला उपदेशक। जो उपदेश देता है उसको आप कहेंगे उपदेशक, ठीक है। तो ये आपके जवाब होंगे। उसी तरह से आपको कर्तृवाचक संज्ञा बनाने में खास ध्यान रखना है कि जो शब्द दिए हैं वो करने वाला व्यक्ति, वो कर्ता हो जाएगा। शब्दों की विशेषण संज्ञा। अब विशेषण क्या होगा? जो विशेष से विशेषण, जो अलग, जैसे कहते हैं ना कि ये सभी लड़के हैं, अब सभी लड़कों में गोरा लड़का, काला लड़का, तो आपने विशेषण लगाया। अब यहाँ पे और शब्द दिया है तर्क। अब तर्क का आपको यदि विशेषण में संज्ञा बनानी है कि आपकी बुद्धि कैसी है, तो बुद्धि में तर्क है, लेकिन जो बुद्धि तर्क वाली है उसे आप क्या कहेंगे? तार्किक बुद्धि। इसकी बुद्धि कैसी है? तार्किक। तो तर्क में एक प्रत्यय लगाना है, तार्किक बनेगा। उसी तरह से परिवार शब्द की यदि आप विशेषण में संज्ञा बनाए कि यहाँ माहौल, कैसा माहौल है, इस घर में कैसा माहौल है, ये जो मूवी है, ये मूवी कैसी है, कि ये मूवी पारिवारिक है। परिवार शब्द में आपको एक लगाना है और आपका जवाब बन जाएगा पारिवारिक। पारिवारिक यहाँ पे बा, ठीक है, पारिवारिक शब्द। उसी तरह से दोस्तों आपका अंतिम प्रश्न यानी कि समास। समास को पहचानना है। समास को पहचानने के लिए आपको सही तरीके से शब्द के अर्थ को जानना पड़ेगा। देखते हैं रात दिन, जहां पे दो शब्द की समान महत्व है, समान अवस्था है, दोनों का एक
समान महत्व होगा और दोनों शब्दों में आपको बीच में और ये संयोजक से आप जोड़ोगे तो जो समास होगा वो समास कहलाएगा द्वंद्व समास। मतलब कि रात और दिन, मैं रात को पढ़ाई करता हूं, मैं दिन में पढ़ाई करता हूं, रात का भी महत्व हुआ क्योंकि रात भी अपनी वाक्य बना सकता है, उसी तरह से दिन का भी महत्व, दिन भी अपना वाक्य बना सकता है। तो मैं रात को पढ़ाई करता हूं, मैं दिन को पढ़ाई करता हूं, मैं रात दिन पढ़ाई करता हूं, रात और दिन द्वंद्व समास याद रखना है। आईएमपी है, ये तो पूछेंगे ही पूछेंगे, ठीक है। द्वंद्व समास रात दिन। अब राजपुरुष संस्कृत में इसकी संधि हो जाएगी, सॉरी विग्रह होगा रागनः पुरुषः, राजपुरुषः षष्ठी तत्पुरुष समास, और हिंदी में भी यही होगा। राजा का पुरुष जिसको राजपुरुष कहा जाता है, तो यहाँ भी आपको तत्पुरुष समास लिखना है। तत्पुरुष समास जो दो शब्द विभक्ति के अर्थ से जुड़ेंगे, विभक्ति यानी प्रथमा द्वितीया तृतीया से लेकर सप्तमी तक की जो विभक्ति के अर्थ है, वो विभक्ति के अर्थ में जुड़ने वाले जो भी शब्द होंगे, जैसे कि हाथ से लिख रहा हूं तो क्षय से ग्रस्त है, हस्तलिखित हाथ से लिखना, तो ये जो से है, मैं किस लिए काम कर रहा हूं, मैं इसलिए कर रहा हूं, मैं घर से बाहर जा रहा हूं, ये सारे शब्द में ये मेरा है, रमेश का घर है, दशरथ का पुत्र है, तो ऐसे शब्दों में जो बीच में जो का, मेरा, मेरे लिए, तो लिए है, से है, ये सारे शब्द क्या होंगे, विभक्ति के प्रत्यय है, और ये विभक्ति के प्रत्यय से जुड़ने वाले जो भी शब्द है वो तत्पुरुष समास कहलाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने आपके लिए व्याकरण के विभाग को प्रस्तुत किया है। यदि आपको कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में जरूर बताइए, हम प्रयत्न करेंगे कि आपके जो भी प्रश्न है उसको हम सही तरीके से उत्तर दे पाए, और हमारे जो भी हिंदी के पूरे मार्क्स है वो कोई भी मार्क्स हम न जाने दें और अच्छी तरह से पढ़ाई करें। यदि आप पहली बार इस वीडियो को देख, नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ हिंदी विषय के लिए आपका व्याकरण विभाग, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की ऐसी फरमाइश थी, कह रहे थे कि सर प्लीज़ हिंदी के लिए कुछ कीजिए, तो मैं आपके लिए एक और पेपर लेकर आया हूँ। पहला पेपर हमने रिलीज़ कर दिया है दोस्तों, पेपर 1। जिसने भी ये व्याकरण का पेपर 1 नहीं देखा है वो पहले पेपर 1 देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने व्याकरण के सारे टॉपिक को क्रम से समझाया है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ व्याकरण विभाग का पेपर, जो है पेपर नंबर 2। तो हम देखते हैं दोस्तों, यदि आपको व्याकरण में कोई त्रुटि है, कोई समस्या है, तो आप कमेंट कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और यदि आप पहली बार ये व्याकरण का वीडियो देख रहे हैं और चैनल को विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि जिस लोगों ने धोरण 10 के अंदर, कक्षा 10वीं के अंदर हिंदी का विषय चयन किया है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं, आपके पास पेपर स्टाइल तो होगी ही होगी, लेकिन फिर भी हम पेपर स्टाइल की चर्चा, साथ में हिंदी के जो भी व्याकरण के टॉपिक है उनकी चर्चा करते करते आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न होगा दोस्तों कहावत। कहावत का आपको अर्थ स्पष्ट करना है। सभी का 1-1 मार्क है, टोटल आपको 18 मार्क्स लेने हैं, 18। तो ये 18 मार्क्स के लिए सबसे पहला प्रश्न होगा दूध का दूध, पानी का पानी। तो दूध का दूध और पानी का पानी आप सबने जाना है और बहुत सारे मूवीज़ देखे हैं, उन सब में ये डायलॉग तो सुना ही है कि दूध का दूध पानी का पानी अभी का अभी हो जाएगा। मतलब कि जो सही है, जो बात सही है वो सही बात को प्रस्तुत करना, मतलब आप समझिए, शिष्ट भाषा में लिखिए तो सही से न्याय करना, ये आपका हो जाएगा सीधा अर्थ कहावत का, कि दूध का दूध पानी का पानी अभी का अभी पता चल जाएगा, ऐसा आपने देखा होगा। फिर शब्द समूह के लिए एक शब्द यदि आपको लिखना हो तो उसमें आपको मैं बता दूं दोस्तों कि यहाँ पे लिखा है फारसी का मुक्तक। जो फारसी भाषा है वो उनका जो मुक्तक है उनको क्या कहेंगे, उस काव्य को कहते हैं रुबाई। क्या कहेंगे दोस्तों, रुबाई। तो ये शब्द समूह अलग अलग, जैसे गुजराती के अंदर आता है सोनेट है, हाइकू है, मुक्तक है, उसी तरह से जो फारसी भाषा का होगा उसको रुबाई कहेंगे। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों संधि। संधि को छोड़िए तो समतुलन, जो स के ऊपर एक अनुस्वार आपको दिख रहा है जिसका बिंदी कहता है, वो सम क्या हो जाएगा, सम प्लस तुलन, ये आपकी संधि हो जाएगी।
अब छोड़ना है, अब संधि को जोड़ना है, तो वहां पर भी सेम कंडीशन है और म दिया है। आप यदि अपने हिसाब से थोड़ी सी आपके पास बुक की रीडिंग है तो आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि कहाँ पे ये शिष्ट शब्द क्या होना चाहिए। संधि छोड़ने में थोड़ी दिक्कत होगी दोस्तों, लेकिन संधि को जोड़ने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जोड़ने में आपको सिर्फ कॉमन सेंस का यूज़ करना है। 99% आपका काम कॉमन सेंस से हो जाएगा। ठीक है, आपने संवेदना शब्द देखा है, इसलिए आपके पास यदि पढ़ाई है, आपने चैप्टर्स को अच्छी तरह से पढ़े हैं, तो संधि जोड़ने में आपको दिक्कतें नहीं होंगी। तो ये मार्क्स आपके लिए बिल्कुल ही आपके जेब में आ जाएगा सरलता से। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ पे आपे से बाहर होना, यहाँ पे दोस्तों ये मुहावरा है, तो मुहावरे को आपको वाक्य में प्रयोग भी करना है। तो चलो देखते हैं। आपे से बाहर होना मतलब कि आपाक होना, मतलब कि बहुत गुस्सा करना, गुस्सा होना। ठीक है, तो गुस्सा करना। अब यहाँ पर यदि वाक्य में प्रयोग करें तो किस तरह से करेंगे? आपे से बाहर होना, जैसे हम समझे कि विद्यार्थी ने छात्र ने शरारत की, उस छात्र ने शरारत की, इसलिए शिक्षक ने अपना आपा खो दिया। समझ रहे हैं बात को? इस तरह से आपा खो दिया। आप कोई भी वाक्य अपने हिसाब से बना सकते हैं, जितना सरल आपको वाक्य आए उस हिसाब से आप बना सकते हैं। जैसे कोई और, जैसे मैं, एक पिता ने जाना कि उसके बच्चे ने चोरी की है, तो चोरी की बात सुनते ही पिताजी आपे से बाहर हो गए। मतलब बच्चे ने जब चुराई कोई चीज़, तो ये चोरी की बात सुनकर पिताजी ने अपना आपा खो दिया, आपे से बाहर हो गए। अब कोई भी लिख सकते हैं, आपका जवाब सही होगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़े। विरोधी शब्द लिखिए। तो आप जानते हैं, अपने तो अपने होते हैं, जो अपने नहीं होते वो क्या होते हैं? वो विरोधी शब्द होते हैं। अपना पराया, अपना पराया। झूठ, झूठ का विरोधी आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि क्या होगा, इसलिए मैं आपको ये बताऊंगा। नहीं, आपको मेरे साथ जुड़ना है, कमेंट करनी है, और कमेंट में आपकी जो दिक्कत है वो भी लिखनी है, और साथ साथ में जवाब भी मेरे साथ शेयर करने हैं। पर्यायवाची शब्द दोस्तों, पर्यायवाची किसी बच्चों को यह पता नहीं होता कि पर्यायवाची क्या होता है। जब एग्जाम के अंदर मैं सुपरविजन कर रहा होता हूँ तो कोई बच्चा मुझे बुलाता है और देखता है, सर इसका मतलब क्या होता है, तो वो शब्द लिखा होता है पर्यायवाची। अब पर्यायवाची शब्द मतलब समानार्थी, वो ही नहीं पता है तो आप माँ का समानार्थी क्या करेंगे दोस्तों? तो माँ का समानार्थी बहुत सारे होते हैं। जैसे मैं लिखूँ माता, आपको भी उस तरह से माँ के और समानार्थी शब्द जो भी आपको पता है वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। फिर स्वादिष्ट, स्वादिष्ट शब्द मतलब आप समझ रहे हो, जो मज़ेदार है, खाने में चटाकेदार है। अच्छा, बहुत सारे शब्द है। जैसे आपने रेस्टोरेंट का नाम भी है बहुत सारे, जो ये काठियावाड़ी जायको, तो वो क्या है? जायकेदार। तो जायकेदार वो क्या होगा? जिसको स्वादिष्ट है, जायका। जो स्वादिष्ट है, स्वाद वाला, उसको जायका कहते हैं। और जायकेदार मतलब जिसमें स्वाद है, स्वादिष्ट। तो जायकेदार भी है, मजेदार भी, कोई भी लिख सकते हैं। रसास्वाद, रसपूर्ण। समाप्त की भाववाचक संज्ञा करेंगे दोस्तों जहां पे होगी समाप्ति। ठीक है, जहां पे होगी समाप्ति वो समाप्त है। नौकरी, उसके साथ जुड़ जाएंगे नौकर, नौकर जो करेगा नौकरी। फिर निम्नलिखित शब्दों की कर्तृवाचक संज्ञा बनानी है। कर्तृवाचक संज्ञा मतलब समझ रहे हो, जहां पे आपको कर्ता बनाना है। कर्तावाचक संज्ञा क्या होगा कि कमांड, कमांड मतलब ऑर्डर। कौन ऑर्डर देता है? जो कि कमांडर है, कमांडर है वो कमांड यानी कि ऑर्डर देता है। लेख, लेख कौन लिखता है? तो लेख को लिखने वाला, कमांड देने वाला कमांडर होगा, लेख को लिखने वाला लेखक होगा। ये मार्क्स आपको एकदम इजीली आ ही जाएंगे, विदाउट एनी डाउट, मुझे तो कोई शंका नहीं है। शब्दों की विशेषण संज्ञा बनाएंगे। अब विश्वास, विश्वास शब्द की आपको विशेषण संज्ञा बनानी है, तो आप गुजराती में तो ऐसे विश्वासु बना देंगे, लेकिन हिंदी में थोड़ा सा अलग होगा दोस्तों। विश्वसनीय, आपको जो विश्वास शब्द की विशेषण विश्वसनीय होगा। ठीक है, फिर वर्ष शब्द में इकर लगा देना है और आपकी संज्ञा हो जाएगी वार्षिक शब्द। ठीक है,
तो वर्ष की वार्षिक, विश्वास की विश्वसनीय। अब अंतिम प्रश्न देखें दोस्तों, तो क्षयग्रस्त, क्षय और ग्रस्त समास के अंदर आपको सबसे पहले पहचानने हैं दो शब्द, तो एक है क्षय, दूसरा है ग्रस्त। अब आपको पहचानना है कि क्षय से ग्रस्त आपको अर्थ करना है। अर्थ करते ही आपको पता चल जाएगा कि ये जो दो शब्द जुड़े हैं उसमें बीच में विभक्ति का प्रत्यय जुड़ा हुआ है। कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? विभक्ति का। और ये कौन सी विभक्ति है? ये तृतीया विभक्ति है जो क्षय से ग्रस्त है, से द्वारा। तो क्षय से ग्रस्त होना मतलब कि जो विभक्ति से जुड़े होंगे वो समास हो जाएगा तत्पुरुष समास। याद रखिएगा दोस्तों, जहां पर भी विभक्ति के प्रत्यय से जो भी जुड़ा है वो तत्पुरुष समास कहलाएगा। और राधा कृष्ण, और राधा और कृष्ण जो दोनों पदों की समान इंपॉर्टेंस, समान महत्व होगा, वो दो शब्द आपके लिए हो जाएंगे राधा और कृष्ण। मतलब कि जहां पर और शब्द आएगा तो वो समास आपका सिंपल हो जाएगा दोस्तों, द्वंद्व समास होगा। यानी कि जहां पर दोनों पद की समान महत्ता है, वो समान है। क्योंकि जैसे राधा कृष्ण नाच रहे हैं, राधा नाच रही है, कृष्ण नाच रहे हैं, दोनों ने अपना पूरा वाक्य कंप्लीट किया है, दोनों शब्द अपना पूरा वाक्य बना सकते हैं। मतलब कि दोनों का महत्व है, और जहां पर दोनों का महत्व होगा वहीं द्वंद्व समास कहलाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आपका यहां पर मैं समास का अंतिम प्रश्न के साथ हमारा पेपर पूर्ण करता हूं। हेलो दोस्तों, कक्षा 10वीं की आप हिंदी की बहुत सही तरीके से तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। उसमें मैं आपको थोड़ी सी आपकी मदद के लिए आज फिर से एक बार आया हूं, जिसमें हम आज हिंदी का पेपर नंबर 3, पेपर नंबर 3 जो कि व्याकरण विभाग है, वो मैं आपके साथ साझा करूंगा, सोल्व करूंगा। आपको यदि कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। यदि इस चैनल में पहली बार ये वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। क्योंकि 10वीं के अंदर जो बच्चे संस्कृत के साथ जिन्होंने हिंदी विकल्प में लिया है, तो हिंदी के लिए भी आपकी कमेंट्स में मैंने पढ़ा कि बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर हिंदी के लिए कुछ लाइए। तो मैं हिंदी के लिए आपके साथ जुड़ा हूँ, प्रयत्न कर रहा हूँ कि आपको मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा मैं मदद कर सकूँ, ताकि आपका भी परिणाम 28 तारीख को आपका पेपर है, ठीक है। तो जो भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और यदि विशेष आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट से ऊपर डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पर आपको हमारी सारी की सारी डिटेल दी जाएगी, जहाँ से आप हमारा फ़ोन थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर भी हम हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपका परिणाम बेहतर बने इसलिए हम आपके साथ खड़े हैं। यदि आपको अपना परिणाम बेहतर बनाना है तो आपको भी हमारे साथ आना होगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा व्याकरण का पेपर नंबर 3, जहाँ पर यदि आपने आगे के 2 पेपर नहीं देखे हैं तो वो पहले देख लीजिए और इसके बाद भी देख सकते हैं, लेकिन तीनों के तीनों पेपर को आप अच्छी तरह से तैयार करिए, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं। सबसे पहले कहावत का अर्थ स्पष्ट करना है दोस्तों। तो कहावत है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। आपको पता है कि जो बहानाबाजी करता है ना, जिनको जैसे नाचना नहीं आता तो वो बहाना बताएगा कि मुझे ये आंगन थोड़ा सही नहीं लग रहा, ये थोड़ा आंगन टेढ़ा है, समझ रहे हो, कार्य की करने की क्षमता नहीं है, तो तरह तरह के बहाने बनाना। तो आप यहाँ पर अर्थ में लिख सकते हैं कि कार्य की क्षमता न होने पर तरह तरह के बहाने बनाना। कार्य करने की क्षमता न होने पर तरह तरह के बहाने बनाना। कोई होगा, आपको भी पता है। यदि आपका कोई दोस्त है ऐसा जो इस तरह से बहाने बनाता है, बातें बड़ी बड़ी करता है, लेकिन जब उसको कोई काम दिया जाए तो वो बहाने बनाएगा कि यार यहाँ पर तो ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, ऐसा कुछ ना कुछ आपके साथ हो सकता है। तो आपको जो भी जिसका भी पता है तो उसको मेंशन कीजिए और यहाँ पे उसके बारे में कमेंट भी कीजिए। चलो फिर उसके आगे शब्द समूह के लिए एक शब्द, धीरज की परीक्षा लेने वाले, धीरज, धैर्य।
तो आप धीरज को धैर्य कहेंगे तो एक शब्द में जो आपके धीरज की परीक्षा लेने वाला है उसे आप परीक्षक, परीक्षा लेने वाला, और धीरज यानी कि धैर्य, तो धैर्य परीक्षक ये आपका जवाब होगा। अब दोस्तों आगे देखते हैं संधि। संधि को छोड़ना है तो जो नियम मैंने अगली बार भी बताया था फिर एक बार बताता हूं। शब्द होगा यहाँ पर प्रति प्लस एक, प्रत्येक शब्द है तो यहाँ पर ई के बाद कोई भी स्वर से शब्द शुरू होता है तो ई की जगह पर य का प्रयोग किया जाता है। तो आपकी कंडीशन क्या होगी, तो आधा है, ई की जगह पर य आधा है और एक। अब इन सभी को मिला दीजिए, य में ए जुड़ जाएगा, एक हो जाएगा और तो आधा है प्रत्येक। इस तरह से आपका ये जवाब बन जाएगा। यदि संधि सबसे सहेली और आईएमपी है, ये वाली कंडीशन सबसे ज़्यादा आपको तैयार करनी होगी क्योंकि ई की जगह पर य, और दूसरा भी आपको बता देता हूँ दोस्तों कि जहाँ पर ई ऊ होगा तो उसकी जगह पर बनेगा व, तो ऊ के स्थान पे व और ई के स्थान पे य, ये आपको दोनों को तैयार करना है। ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। अब संधि को जोड़ना है, ये आपको ज़्यादा सहला, इसमें ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। एवं म आधा है, पीछे स्वर है, बस सिर्फ जोड़ दो, कोई प्रोसेस नहीं करनी है। म के अंदर अ को जोड़ देना है। एवं अस्तु। मुहावरे का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। धक्के खाना आपको पता है जैसे कोई काम के लिए, जैसे कि आप किसी के पास पैसे मांग रहे हैं, किसी से पैसे लेने हैं, तो आप बोलेंगे ना कि पैसे के लिए मैं बार बार ये मुझे धक्के खिलवाता है, या तो पैसे के लिए मैंने बार बार धक्के खाए हैं, मैंने अपनी सैलरी जो मुझे कंपनी में जो वॉटेवर, आप कुछ भी मतलब कुछ भी, तो धक्के खाना ये अर्थ आपका वहाँ पर होगा कि आपका काम न होना। यदि आपका काम न हो तो आप बार बार धक्के खाते हैं कि मैं ये सर्टिफिकेट निकलवाने के लिए बार बार धक्के खाया। तो इस तरह से आप वाक्य भी बना सकते हैं, कोई भी वाक्य बना सकते हैं। मेरे मालिक ने मेरी पगार न देने पर मैंने पगार लेने के लिए बार बार धक्के खाए। ठीक है, आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं। या कोई कागजात है जो आप तैयार करवाना चाहते हैं, तो कागजात करने के लिए मैंने कचहरी में बार बार धक्के खा रहा हूँ, धक्के खाए हैं। कोई भी वाक्य इस तरह से बनाओ। शब्दों का विरोधी शब्द लिखना है दोस्तों, तो मीठी वाणी, आपको पता है कि जैसे मीठी वाणी उसका विशेषण हो जाएगा मीठी वाणी, तो मीठी जो होगा तो आपको उसका कड़वा विरोधी शब्द कटु, कटु यानी कड़वा। शिक्षित, शिक्षित आपको कमेंट में बताना है। विरोधी शब्द सबसे सरल है, बताइए कमेंट में लिखकर बताइए शिक्षित का विरुद्धार्थी क्या होगा, विरोधी शब्द। अब है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द परमात्मा, वो जो समस्त सृष्टि को चलाता है, बनाता है, नाश करता है, तो क्या आएगा समानार्थी। बहुत सारे शब्द है, आपको जो पसंद है कमेंट में बताइए। अंधकार क्या हो जाएगा दोस्तों, पर्यायवाची। अंधकार को तमस भी कहा जाता है हिंदी में, उसके लिए शब्द तिमिर। ये थोड़ा हार्ड है, मैंने बता दिया। ठीक है, अंधकार का तिमिर आपको परमात्मा बताना है और शिक्षित का विरोधी शब्द भी बताना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक आपको भाव बनाना है। आवश्यक, मुझे आवश्यकता है, ता लगा दो, ता प्रत्यय आ जाएगा, आवश्यकता। ये पागल है, ये तो हो गई संज्ञा, पर इसके अंदर पागलपन है, इसके अंदर पढ़ाई करने का पागलपन है, पढ़ाई कर रहा है, इसको टॉपर बनने का पागलपन है। तो आप में भी ये पागलपन होगा, आप भी तैयारी करते हैं, आपको भी टॉपर तो बनना ही है, तो ठीक है, पागलपन। कर्तृवाचक संज्ञा करनी है। अब कर्तृवाचक मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, अगेन बता रहा हूं। देना, तो कौन दे सकता है, देता कौन है, जो देने वाला होगा दाता। क्या होगा, दाता, जो देता है। ठीक है, और कहानी, अब कहानी कौन कहता है या बनाता है या लिखता है, जो कहानीकार है। लेख लिखने वाला लेखक होगा, कहानी कहने वाला कहानीकार होगा, वार्ताकार कहानीकार। शब्दों को विशेषण संज्ञा बनानी है। अब विशेषण संज्ञा में अंश में इक लगा दीजिए। अंश में इक लगाने से क्या होगा शब्द दोस्तों, आंशिक। जैसे नहीं कहता आंशिक व्याख्या, आंशिक पद, उस तरह से आंशिक।
वास्तव में इक लगा दो, बन जाएगा। यह सब आपको पता है, आपने सुना है, लेकिन प्रयोग करने में कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। ये वीडियो दोस्तों आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और यदि कोई आपको जानकारी की आवश्यकता है, यदि आप फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, 11वीं या 12वीं में आपको जाना है, साइंस करना है, कॉमर्स करना है, तो वो भी हम पढ़ाते हैं गुजराती मीडियम में। तो हाँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कांटेक्ट कीजिए, नंबर दिया है, हमारा संपर्क कीजिए, हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। लेकिन अभी आपकी एग्जाम होगी, फिर आपको करना क्या है, उसके लिए आप रिजल्ट की राह देखेंगे। लेकिन मेरी मानिए, जो आपको शौक है, जिसमें आपको रुचि है, उस फील्ड में जाइए। अपने परसेंटेज के हिसाब से, ना कॉमर्स, ना साइंस, ना आर्ट्स, ये आपको तय परसेंटेज के हिसाब से नहीं करना है। आपको जिस विषय में रुचि है, उस हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, समास को पहचानना है। समास पहचानिए। 2 और 4 समान है। मेरे पास 2 शेर है, मेरे पास 4 शेर है, मेरे पास 2-4 शेर है। 2 और 4 जहां पर दोनों पद की समान महत्व होगा, द्वंद्व समास कहलाएगा। तो आपका समास बनेगा द्वंद्व समास। और एक शब्द दिया है आजीवन, जीवन पर्यंत। क्या हो जाएगा इसका अर्थ दोस्तों? जीवन पर्यंत। और जब वहां पर जीवन पर्यंत ऐसा अर्थ दिया है तो आपका समास हो जाएगा आ उपसर्ग अव्यय लगाने से अव्ययी भाव समास। तो इस तरह से दोस्तों आपका यहाँ पे पेपर खत्म होता है। यस, हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ये जो हिंदी का व्याकरण विभाग है वो हमने खत्म किया है। यदि इसमें आपको कोई भी त्रुटि है, दिक्कत है, ना समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए। यदि समझ में आ रहा है तो भी कमेंट कीजिए, ताकि हमको पता चले कि हम आपकी कितनी सहायता कर सकते हैं और ज़्यादा सहाय करनी है या नहीं करनी है, ये हमको पता चले। इसलिए चलो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगली बार फिर से। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार।